السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ کانسٹیبل شوہر نے بیوی اور اس کے عاشق ٹیچر کو رسی سے باندھ کر گاؤں میں پریڈ کروائی۔ تلنگانہ میں عجیب و غریب واقعہ۔ حیدرآباد ایئرپورٹ پر 23 خواتین سے 7.89 کروڑ روپے مالیت کا سونا برآمد۔ FCI گودام میں بڑے پیمانے پر لگی آگ۔ نتیش کمار 2025 اور 2030 میں بھی چیف منسٹر رہیں گے، تیجسوی یادو۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اب کتوں کے حملوں کے بعد بندروں کے حملے میں بھی شیرخوار بچی زخمی۔ تلنگانہ میں واقعہ۔ بندروں نے شیرخوار بچی پر حملہ کر دیا۔ یہ واقعہ ریاست تلنگانہ کے محبوبہ ضلع کے کوروی منڈل کے مودگولا گوڑم میں پیش آیا۔ مقامی لاونیا اور سریش نامی جوڑے کو 1.5 سال کی بیٹی ہے۔ کل سے پہلے خاتون اپنی بیٹی کو مکان کے صحن میں جھولے میں سلا کر پانی لینے کے اندر گئی ہوئی تھی۔ کسی دوران بندروں نے شیرخوار پر حملہ کر دیا۔ بچی کے رونے کی آواز سن کر جب لاونیا وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی پر بندر حملہ کر رہے ہیں۔ اس نے لاٹھی سے حملہ کر کے بندروں کو بھگا دیا، تاہم اس وقت تک لڑکی زخمی ہو گئی تھی۔ بندروں نے بچی کے پاؤں کے انگوٹھے کو کاٹ لیا تھا۔ لڑکی کو ابتدا میں محبوباد اور وہاں سے بہتر علاج کے لیے ورنگل منتقل کر دیا گیا۔ کانسٹیبل شوہر نے بیوی اور اس کے عاشق ٹیچر کو رسی سے باندھ کر گاؤں میں پریڈ کروائی۔ تلنگانہ میں عجیب و غریب واقعہ۔ تلنگانہ میں ایک شوہر نے بیوی کے ایک اور ٹیچر کے ساتھ ناجائز تعلقات پر دونوں کو رنگے ہاتھ پکڑنے کے بعد ان کے ہاتھ رسی سے باندھ کر گاؤں میں ان کی پریڈ کروائی۔ یہ واقعہ ضلع ملک میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق کے ناگندر، جو ضلع پریشد ہائی اسکول منگا پیٹ منڈل مستقر میں فزیکل سائنس اور بایو سائنس اسکول اسسٹنٹ کے طور پر خدمات انجام دیتا ہے، کہ ناجائز تعلقات ایک اور خاتون ٹیچر سے ہو گئے۔ اس خاتون ٹیچر کا شوہر کانسٹیبل بتایا جاتا ہے، نے اپنی بیوی کو ناجائز تعلقات پر انتباہ دیا، تاہم اس کی بیوی اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں لائی، جس پر اس کے شوہر نے اپنی بیوی اور ناگندر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور ان کے پولیس کے حوالے کرنے سے پہلے ان کے ہاتھ رسی سے باندھ کر گاؤں میں ان کی پریڈ کروائی، بعد ازاں ان کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ حیدرآباد ایئرپورٹ 23 خواتین سے 7.89 کروڑ روپے مالیت کا سونا برآمد ہوا۔ جمعرات کو کسٹم حکام نے بتایا کہ حیدرآباد کے راجیو گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کسٹم حکام نے 23 خواتین مسافروں سے 7.89 کروڑ روپے کے سونے کے زیورات برآمد کیے ہیں، جو سوڈان سے شارجہ کے راستے پہنچی تھی۔ چہارشنبے کو پہنچنے والی خواتین کے سامان کی ذاتی تلاشی پر کل 14,906.3 گرام سونا برآمد ہوا ہے۔ اس میں 14,415 گرام 22 کیرٹ سونا اور 491 گرام 24 کیرٹ سونا شامل ہے۔ حکام نے مزید کہا کہ انفرادی مسافروں سے برآمد ہونے والی مقدار کی بنیاد پر ان میں سے 4 کو گرفتار کر لیا گیا اور مزید تفتیش جاری ہے۔ مسافروں نے سونے کے زیورات اپنے جوتوں میں چھپا رکھے تھے۔ یہ اس سال ہوائی اڈے پر سونے کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ جنوری کو کسٹم حکام نے دبئی سے آنے والے ایک مسافر سے 583.11 گرام سونا ضبط کیا تھا، جس کی مالیت 33,57,000 روپے تھی۔ اس نے سونے کی سلاخوں کو سیلو ٹیپ کے ساتھ موبائل کور میں چھپا رکھا تھا۔ جنوری کو دبئی سے آنے والے 4 مسافروں سے 77.02 لاکھ روپے کا سونا ضبط کیا گیا۔ ایک دن قبل کسٹم حکام نے دبئی سے آنے والے مسافر سے 27,78,000 روپے کا سونا ضبط کیا تھا۔ یکم جنوری کو دبئی سے آنے والے مسافر سے 16 لاکھ روپے مالیت سونا ضبط کیا گیا۔ گودام میں بڑے پیمانے پر لگی آگ۔ تلنگانہ کے ضلع نلگنڈے میں فوڈ کارپوریشن آف انڈیا FCI کے گودام میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ ضلع کے کیتاپلی منڈل کے ایپل گوڑم حدود میں واقع گودام میں اچانک آگ لگنے سے مقامی افراد خوفزدہ ہو گئے۔ اس واقعے میں گودام میں رکھے سینکڑوں تھیلے جل کر خاکستر ہو گئے۔ اطلاع پر فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، البتہ 3 کروڑ روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس واقعے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ آندھرا پردیش کے نئے گورنر جمعے کو ذمہ داری سنبھالیں گے۔ آندھرا پردیش کے نامزد گورنر عبدالنذیر ریاست پہنچ گئے۔ کل شب ان کا ایئرپورٹ پر وزیر اعلیٰ وائس جگن موہن ریڈی نے استقبال کیا۔ سپریم کورٹ کے سابق جج عبدالنذیر جمعہ کو یہ نئی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ چیف منسٹر نے ان کو گلدستہ پیش کرتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ حال ہی میں صدر جمہوریہ درپدی مرمو نے کرناٹک سے تعلق رکھنے والے عبدالنذیر کو اس تلگو ریاست کا گورنر مقرر کیا تھا، جبکہ AP کے موجودہ گورنر وشوا بھوشن ہری چندن، جن کا تعلق اڑیسہ سے ہے، کو چھتیس گڑھ کا گورنر
नीतीश कुमार 2025 और 2030 में भी चीफ मिनिस्टर रहेंगे, तेजस्वी यादव का बयान। जहानाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जब तक नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर रहेंगे इनकी सियासी तजुर्बे में इजाफा होगा। ऐसे वक्त में जब आरजेडी कायदीन दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द वो बिहार के चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने एक रोज़ कबल इन तमाम क़यास आरायों को यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि नीतीश कुमार न सिर्फ 2025 में बल्कि 2030 में भी चीफ मिनिस्टर रहेंगे। जहानाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जब तक नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर रहेंगे इनकी सियासी तजुर्बे में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि नीतीश जी 2025 में ही नहीं बल्कि 2030 में चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे, इनके सियासी तजुर्बे में इजाफा होगा। मसला क्या है, अब आप लोग मीडिया इसका मतलब तलाश करेंगे। चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर रहने की वो सलाहियत रखते हैं। जेडीयू के कौमी सदर ललन सिंह ने कहा था कि 2025 असम्बली इंतखाबात के लिए चीफ मिनिस्टर के चेहरे का इंतखाब अभी नहीं हुआ है। वहीं जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी केसी त्यागी एक कदम आगे बढ़ते हुए कह दिया था कि नीतीश कुमार न सिर्फ 2025 बल्कि 2030 में भी चीफ मिनिस्टर रहेंगे। इन बयानात के बाद तेजस्वी यादव का यह बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी वाहिद मंशा 2024 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को फिर से मरकज़ से बेदखल करना है। हम इस पर काम कर रहे हैं। अजीम इत्तेहाद की हुकूमत नीतीश कुमार की क़ियादत में चल रही है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। सबकी अपनी इच्छा होती है तो गलत बात है क्या? ना गलत नहीं। तो क्या है ये हमलावर कहाँ है ना, वो लगातार बोल रहे हैं। वो चाहते हैं उनका बेटा सीएम बने, तो कौन अपना बेटा को जो है ऊंचा जाते हुए या बड़े से बड़े पद पे जाते हुए नहीं देखना चाहता? सब लोगों की इच्छा होगी। आप नहीं चाहते आपका बेटा आपसे ज़्यादा नाम करे, सही बात। तो सबकी इच्छा होती है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को, हम पहले ही बता दे रहे हैं, हमको कोई हड़बड़ी नहीं। अब इसके मायने आप समझ जाइए सही बात। कि क्या है। सर कोई धोखा तो नहीं हुआ आपके साथ? कोई धोखा तो नहीं हुआ? ये किस बात का धोखा होगा? ये जो लग रहा है कि बात तो चेंज हो रहा है कि बनेंगे 25 में बनेंगे 24 में कौन बोल बनेंगे। रहा है? ललन सिंह बोल रहे थे। ललन सिंह बोल रहे थे। वो आप लोग पूछ रहे हो ना, 25-24 वो तो दूर की बात है। तो क्या गलत बोला उन्होंने गलत क्या बोला है? त्यागी तो बोल दिया कि 30 तक वैकेंसी। अरे भाई ऐसा शब्द बोला है या क्या बोला है? नहीं, बोले कि 30 तक हम तो सीएम खुद कह रहे चेहरा। हैं नीतीश कुमार जी जो है उनमें क्षमता है ही ना भाई, वही बात कही है ना 25 या 30। जी तो क्या, और जितना आगे बढ़ेगा उतना अनुभव बढ़ेगा उनका, तो इसमें गलत क्या है? सही बात। सर 24 में क्या है, कितनी सीटें जीतने का आपका ये है? बिहार से 24 में कितने सीटें लोकसभा की जीतेंगे? क्या हमारी तय तो रखा है? कोशिश है एक भी सीट भाजपा ना दी। हम लोग काहला चाहेंगे कि कुछ जीते। शिवाजी का मुजस्सिमा हटाने पर बीजेपी कारकुनों की गड़बड़। हैदराबाद में छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्सिमा, जिसे बीजेपी लीडर्स ने शिवाजी जयंती पर नस्ब किया था, जुमेरात को कुछ लोगों ने हटा दिया, जिससे इलाके में कशीदगी फैल गई। पुलिस ने बाद में बताया कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों ने मुजस्सिमे को हटाया है क्योंकि बल्दिया की ज़रूरी इजाज़त लिए बगैर नस्ब किया गया था। यह मुजस्सिमा हैदराबाद में मीरपेट पुलिस स्टेशन हदूद के तहत हस्तिनापुरम डिवीज़न के नंदनवनम चौराहे पर नस्ब किया गया था। मुजस्सिमे को हटाते ही बीजेपी के खरीदीन और वर्कर्स वहां जमा हो गए और एहतजाज करने लगे। इत्तला मिलते ही मीरपेट पुलिस ने वहां पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया। डीसीपी एलबी नगर श्री साई ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अहदेदारों ने मकामी पुलिस स्टेशन से रुजू किया था और बताया था कि छत्रपति शिवाजी का मुजस्सिमा 3 दिन पहले बगैर इजाज़त के नस्ब किया गया है। अब हमारी इत्तला के मुताबिक जीएमसी ने इस मुजस्सिमे को हटा दिया है। डीसीपी श्री साई ने मजीद बताया कि किसी भी बीजेपी क़ायद या वर्कर को हिरासत में नहीं लिया गया। इन्हें इस बात की कोई इल्म नहीं था कि मुजस्सिमे को किसने हटाया है। हमने इत्ते मुतल्लिक़ किया है कि जीएचएमसी ने मुजस्सिमा हटाया है। एक 20 साला नौजवान ने अपने 69 साला बाप को कत्ल कर दिया। महाराष्ट्र का अफसोसनाक वाक़या। जुमेरात को एक पुलिस एहलकार ने बताया कि महाराष्ट्र के थाने ज़िले के एक 20 साला शख्स को अपने 69 साला बाप को कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, जो बज़ाहिर अक्सर इसके साथ ज़्यादती करता था। मुल्ज़िम और उसके वालिदैन डोमेबोली के खम्बलपाड़ा के रहने वाले हैं। तिलक नगर पुलिस स्टेशन के पांडुरंग थीथे ने बताया कि इसकी माँ घरेलू मुलाजिमा है। सरकारी मुलाजिमत से मुअत्तल खातिन का सड़क पर बरहना एहतजाज, गिरफ्तार। जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर जयपुर में बरहना एहतजाज करने वाली एक 36 साला खातून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि यह खातून सरकारी नर्स थी जिसे मुलाजिमत से फारिग कर दिया गया था।
पुलिस ने बताया कि जब उन्होंने खातून को सड़क पर चीखते चिल्लाते हुए पाया तो देखा कि इसने कोई लिबास नहीं पहना है। फौरी तौर पर लेडीज़ पुलिस को तलब करके इस खातून को वहां से हटा दिया गया और गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक यह खातून राजस्थान के अलूर ज़िले में एक माविन नर्स मिडवाइफ ANM दाया के तौर पर तैनात थी, लेकिन इसका पहले अजमेर ज़िले के ब्योर तबादला किया गया और फिर बेवर से जयपुर ज़िले के डोडू तबादला किया गया था। वो 2020 से पोस्टिंग का इंतज़ार कर रही थी और इस सिलसिले में परेशान थी। बताया गया है कि इसे महकमे की तरफ से एक तादीबी कार्रवाई के सिलसिले में मुअत्तल कर दिया गया था। SMS पुलिस स्टेशन के नोरथन धोलिया ने बताया कि खातून ने अपने ससुराल के खिलाफ भी शिकायत कर रही की थी और इस बात से नाखुश थी कि इस सिलसिले में भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक खातून ज़हनी तौर पर गैर मुस्तकिम नहीं थी, वो ज़हनी तौर पर अदम तवाज़ुन का भी शिकार नहीं लग रही थी। वो पूरे होश में थी और उसे मालूम था कि क्या हो रहा है। वो बिल्कुल और यहाँ हालत में पाई गई। वो सड़क पर हंगामा कर रही थी और चीख रही थी। ख़वातीन पुलिस एहलकारों को बुलाकर इसे गिरफ़्तार कर लिया गया और इन्हें सूरत हाल पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना रहा। खातून को CRPC की दफ़ा 151 के तहत अमन में खलल डालने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया और जयपुर की एक अदालत में पेश किया गया। उद्धव ठाकरे धड़े के सीनियर लीडर संजय रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महाराष्ट्र में चल रही सियासी हलचल के दरमियान संजय रावत के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने संजय के खिलाफ थाने की साबिक मेयर मीनाक्षी शिंदे की शिकायत पर बुध 22 फरवरी को FIR दर्ज की है। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से शिंदे ढिरे को शिवसेना का नाम और इंतखाबी निशान तीर कमान फराहम किए जाने के बाद महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। संजय रावत ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन के फैसले के पीछे सौदेबाजी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि इसके लिए 200 करोड़ रुपये का लेन देन हुआ है। संजय रावत पर थाने में दर्ज होने वाले मुकदमे में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने एकनाथ शिंदे के बेटे और रुकने पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे पर जान से मारने की साजिश करने का इल्ज़ाम लगाकर इन्हें बदनाम करने की कोशिश की। कपूर बावड़ी पुलिस थाने में दर्ज मुकदमात में ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 211, 153A, 500, 501, 504, 505 2 का इतलाक़ किया गया है। ख़बरें ED की जानिब से दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले के सिलसिले में शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत को 3 महीने से भी ज़्यादा वक्त के लिए जेल में रहना पड़ा था। इसके बाद इन्हें नवंबर 2022 में ज़मानत मिलने के बाद रिहा किया गया। मामले की समाअत के दौरान अदालत ने संजय रावत को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करने पर फटकार भी लगाई थी। MCD कायमा कमेटी इलेक्शन शदीद हंगामा आराई कशीदगी के दरमियान ऐवान की कार्रवाई मुलतवी। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात होने के बाद कायमा कमेटी का अरकान का इलेक्शन एक मरतबा फिर तातुल का शिकार हो गया है। ख्याल रहे कि MCD का मेयर इंतखाब कई कोशिशों के बाद भी तातुल का शिकार था और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद कल यानी 22 फरवरी को राजधानी के लोगों को आप लीडर शोबी ओबराय के तौर पर नया मेयर मिल गया। इसके बाद डिप्टी मेयर हुदे पर भी आप लीडर आले मोहम्मद इकबाल को पुरअमन तरीके से मुंतखब कर लिया गया। लेकिन कायमा कमेटी के इंतखाब के दौरान BJP और आप काउंसलरों ने ज़बरदस्त हंगामा आराई की जो रात देर गए तक जारी रही। आखिरकार ज़बरदस्त हंगामा आराई के पेश नज़र ऐवान की कार्रवाई जुमा 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सबको मोनो बनना पड़ेगा। मोनो मानेसर के लिए दूसरी हिंदू महापंचायत में हज़ारों अफराद की शिरकत। जय श्री राम के बुलंद वाला नारे इस वक्त गूंजने लगे जब हज़ारों लोग दोपहर की धूप में सब्ज़ चटाइयों पर बैठकर
बजरंग दल के रुकन मोनू मानेसर और जुनैद व नासिर के दीगर कातिलों की हिमायत में एक जगह जमा हुए थे। वाज़ेह रहे कि गाय की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में बजरंग दल के गुंडों ने जुनैद व नासिर को शदीद ज़दकोब करने के बाद इन्हें ज़िंदा जला दिया था और अब हिंदुओं की बड़ी तादाद इनकी तायद में जमा होकर न सिर्फ इनकी खुलेआम हिमायत कर रही है बल्कि इनकी गिरफ्तारी को रोकने की कोशिश भी कर रही है। शाह शमीक रोज़ हरियाणा के पलवाल ज़िले के हाथीन कस्बे की अनाज मंडी में मोनू मानेसर और दीगर मुल्ज़िमान की हिमायत में एक हिंदू महापंचायत मुनाकिद की गई। इस प्रोग्राम के मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद थी, जिनके रूबरू नफरत अंगेज नारे लगाए गए और मुसलमानों को निशाना बनाने की बात कही गई। मरती बेटी करे पुकार बंद करो ये अत्याचार। मरती बेटी करे पुकार बंद करो ये अत्याचार। मरती बेटी करे पुकार बंद करो ये अत्याचार। मानो तुम बर्दाश्त करो हम तुम्हारे साथ हैं। मानो तुम बर्दाश्त करो हम तुम्हारे साथ हैं। मरती बेटी करे पुकार बंद करो ये अत्याचार। मरती बेटी करे पुकार बंद करो ये अत्याचार। राजस्थान सरकार यूपी की राजधानी में थूकना मना है, मुहिम शुरू, वसूल किया जाएगा जुर्माना। लखनऊ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन LMC GIS 23 और G20 इवेंट्स के लिए किए गए सजावट के कामों को महफूज रखने की कोशिश के तहत जुमेरात 23 फरवरी से 1 मार्च तक थूकना मना है के उन्वान से एक खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। LMC कमिश्नर इंद्रजीत सिंह ने एक बयान में कहा कि जो लोग खुले मकामात पर थूकते या हाजत दूर करते हैं, इन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खुले में गंदगी फैलाने वालों को मिस्टर या मिसेस पिक्कू का खिताब दिया जाएगा और इन पर उत्तर प्रदेश फीस इंतज़ाम ऑपरेशन और सफाई रूल्स 2021 के तहत 250 रुपये का जुर्माना भी आयद किया जाएगा। सिंह ने मज़ीद कहा कि मुहिम के लिए पुलिस, NGOs, मुकामी लोगों की मदद ली जाएगी। LMC कमिश्नर ने कहा कि हम रेडियो और मनादी के ज़रिए खुले में थूकने या हाजत दूर न करने के पैगाम को आम किया जाएगा। इसके अलावा बसों पर भी इस पैगाम के बोर्ड्स और होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुहिम में हिस्सा लेने वालों में सर्टिफिकेट और T-शर्ट तकसीम की जाएंगी। आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली उमित रतन कोट फतेह रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार। पंजाब के भटंडा डी हार्ट असम्बली हलके से रुकन असम्बली और आम आदमी पार्टी आप के लीडर उमित रतन कोट फतेह को विजिलेंस ब्यूरो ने रिश्वत के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया है। एक आला अहदेदार ने जुमेरात को यह इत्तला दी। इससे कुछ रोज़ कबल पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने रुकन असम्बली के माविन खास रेशम गर्ग को इस मामले में गिरफ्तार किया था। ब्यूरो के एक आला अहदेदार ने इत्तला दी कि रुकन असम्बली को बुध की शाम राजपुरा से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि इन्हें जुमेरात आज अदालत में पेश किया जाएगा, उनके जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की जाएगी। ख्याल रहे कि रुकन असम्बली के माविन रेशम गर्ग को एक ग्राम प्रधान के शौहर की शिकायत के बाद 16 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। इन पर 25 लाख रुपए का फंड जारी करने के एवज 5 लाख रुपए की रिश्वत का मुतालिबा करने का इल्ज़ाम है। रिपोर्ट के मुताबिक विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने रेशम गर्ग को 4 लाख रुपए नकद रकम के साथ गिरफ्तार किया था। खबर कोट फतेह ने गर्ग के साथ किसी भी तरह के ताल्लुकात से इनकार किया था। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत को बदनाम कोशिश करने के इल्ज़ाम आयद किया। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।